Welcome to St. Thomas School, Surat. Myself, Kavita Solanki, subject Sanskrit Standard 9, chapter number 2, Family Tradition. તો અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે કુલાચાર એટલે કુળનો આચાર, કુળની પરંપરાનું પાલન અહીં કરવામાં આવે છે. તો અહીં છે કે કુલાચાર વિશે તમને રામાયણ વિશે વાત કરવામાં આવી છે કે કુળની પોતાની પરંપરા સાચા માટે શું કરવામાં આવે છે. તો કે રામાયણ આદિકવિ વાલ્મીકીએ રામાયણની રચના કરી છે. રાજા દશરથ હોય છે. રાજા દશરથને 3 રાણી હોય છે. સૌથી કૌશલ્યા માતા મોટા હોય છે, તેને રામ નામનો પુત્ર હોય છે. કૈકેયીને ભરત નામનો પુત્ર હોય છે અને સુમિત્રાને શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણ નામના 2 પુત્ર હોય છે. તો આ 4 બાળકો નાના હોય છે, પછી મોટા થાય ત્યારે એમને ગુરુકુળમાં મૂકવામાં આવે છે, ત્યાં ભણે છે. પછી એ લોકો જ્યારે વનવાસ માટે જાય છે ઋષિ સાથે, ત્યાં જનક રાજાને ત્યાં સીતા માતાનું સ્વયંવર હોય છે. ત્યાં સ્વયંવર માટે એ લોકો જાય છે. તો ત્યાં ધનુષ્ય ભંગવાનું હોય છે. ત્યાં રામ ભગવાન છે તે સીતા માતાને ગૌરી માતાના મંદિરમાં જાય છે, તેમને જોઈ છે અને તેમને પસંદ પડી જાય છે અને તે ગૌરી માતાને સીતા પણ પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન રામ જ મારા પતિ થવા જોઈએ, એવી પ્રાર્થના કરે છે. ત્યાર પછી તેઓ આવે છે અને સ્વયંવર થાય છે. ત્યારે રામ જે શિવનું ધનુષ એને તોડી નાખે છે અને સીતા માતા સાથે એમના લગ્ન થાય છે અને સીતા માતાની જે બહેનો સાથે 3 ભાઈઓના પણ લગ્ન થઈ જાય છે. આમ સારી રીતે બધું થઈ જાય છે. અને પછી જ્યારે રાજા દશરથ એક દિવસ આઈનામાં પોતાનું મોઢું જોઈ છે, ત્યારે એમના વાળ સફેદ દેખાય. ત્યારે એમને યાદ આવે છે કે હવે મારે વન પ્રસ્થાન કરવું જોઈએ. એટલે તેઓ બધી રાણીને ભેગી કરે છે અને તેઓ વાત કરે છે કે હવે આપણે રામને રાજગાદી આપીને આપણે બીજી જગ્યાએ જતું રહેવું, વનવાસ જવું જોઈએ, વન પ્રસ્થાન કરવું જોઈએ. તો એ ત્યારે રામને રાજગાદી બેસાડતા બધા લોકો ખૂબ ખુશ હોય છે. તો કૈકેયી પણ બહુ ખુશ હોય છે. એક સમય હતો કે જ્યારે રાજા દશરથ, પહેલાંનો સમય કે રાજા દશરથ છે તે દેવો સાથે યુદ્ધ કરવામાં, દાનવ સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જાય છે. ત્યારે રાજા દશરથને જે રથની ખીલી હોય છે તે નીચે નીકળી જાય છે. તો કૈકેયી માતા હોય છે તેની સાથે જાય છે અને તે રથમાંથી રાજા દશરથની ખીલીમાં પોતાની આંગળી નાખે છે. ત્યારે રાજા દશરથ તેમને વચન આપે છે કે માંગીને તમે આપો. ત્યારે કહે છે કે હું જ્યારે મને જ્યારે કંઈ વરદાનની જરૂર હશે ત્યારે હું તમને આપીશ. ત્યારે કહે છે કે મારે અત્યારે કંઈ નથી જોઈતું, સમય આવે ત્યારે માંગે. ત્યારે કૈકેયી માતા પણ રામ રાજગાદી બેસવાનો સમય છે ત્યારે ખૂબ ખુશ હોય છે, પરંતુ તેઓ ના પાડે છે. એવામાં કૈકેયી માતાને એની જે દાસી હોય છે તે મંત્રને કહે છે કે તારે જે રાજા દશરથ પાસે જે 2 વરદાન માંગવાના હતા તે તું માંગ. તો કૈકેયી તે સમય વરદાન માંગે છે કે રામને 14 વર્ષનો વનવાસ અને ભરતને રાજગાદી. રઘુકુળની રીત એ હોય છે કે રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય. એટલે પોતાના વચનનું પાલન કરવા માટે પોતાના પ્રાણી પણ આહુતિ આપવા તૈયાર રહેતો. બીજે દિવસે સવારે રાજનો અભિષેક હોય છે. તો કૈકેયી માતા રિસાઈ જાય છે. દશરથ રાજા ખૂબ મના છે, છતાં માનતા નથી. અને પછી રાજા દશરથ તેની પાસે જાય છે, ખૂબ નથી માનતા ને કેમ વચન માંગે છે કે મારા રામને 14 વર્ષનો વનવાસ અને ભરતને રાજગાદી માંગે છે. ત્યાર પછી જ્યારે રામને આ વાતની ખબર પડે છે ત્યારે રામ એમની પાસે દશરથ પાસે જાય છે અને પોતાના જે વચન હોય છે વચનનું પાલન કરે છે અને રામ વનવાસ જાય છે અને ભરતને રાજગાદી સોંપવામાં આવે છે. એ રીતે જે રીતે રામ એ પોતાના કુળનું પાલન કરેલું તેવી જ રીતે અહીં એક પક્ષી પણ વાત કરવામાં છે. ચાતક પક્ષી હોય છે. आपको एक पिक्चर दिया गया है, इसमें है कि चातक बर्ड है वो जो है वो उसके कुल की परंपरा है कि वो मेघ का ही पानी पीते, दूसरे अन्य जल का प्राणी ग्रहण नहीं करते. तो आप देख रहे हो कि इसका मुख बड़ा होता है, तो जब बारिश आती है तो अपने मुख में से वो पानी पूरा उसमें संग्रह करता है और फिर पूरे साल ये पानी का उपयोग करके अपनी प्यास बुझाता है. इसके ऐसी स्टोरी है चातक बर्ड की. तो हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, कुलस्य आचार्य.
Lesson number 2, Pulasya Achara, Family Tradition. Right from ancient time in Sanskrit, the fables literature have been the popular Sanskrit literature. Later, it is the Jataka tales or the Panchtantra or the Hitopadesh. In the every book, animals are the character thought with the different tales have been the immediately read. तो इसका मतलब है कि संस्कृत साहित्य में जो प्राणी कथाओं का प्रचलन लंबे पुराने साल से चल रहा है। तो इसमें जातक माला के पीछे पंचतंत्र हितोपदेश है। सो इसमें दरेक ग्रंथ में, दरेक कथा ग्रंथ में से प्राणी मतलब कि जो एनिमल्स होता है उसको पात्र बनाकर हर एक प्रकार की कथाओं को परिकल्पित किया गया है। तो फैबल्स आर क्रिएटेड इवन टुडे। सो bunch of fables is the presented here. A bird called the Chataka drinks only rainwater. This is a tradition of the Chataka race. Every child born into the Chataka family flows. This the tradition tale. इसमें डूडे लिखा है तो आपको इसको करेक्ट करके टूडे लिखना है। तो इसमें समझाया गया है कि अभी भी आज प्राणियों कथाओं का सृजन हो रहा है। तो ऐसी प्राणी कथाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो एक चातक नाम का जो बर्ड पक्षी है, वो बर्ड है, वो हमेशा बारिश का ही पानी पीता है। तो उसके चातकों की परंपरा है कि चातक पक्षी का जब जन्म होता है तो हमेशा ये नियम का उसको पालन करना पड़ता है। तो once when the child of the Chataka family is so troubled by trust that not ending the advice of his mother, he gets ready to break this tradition. By chance, he hears the conversation between poor farmer and his son. Inspired by the conversation that he hears between the poor farmer and his son, he goes back to his mother and so his revelings to follow the custom of his race. इसमें समझाया गया है कि जब अपनी प्यास से अपनी प्यास बुझा हमारे चातक शिशु अपनी माता की बात नहीं मानता है और वो अपने आदेश का त्याग करता है, तो अचानक वो वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर एक जो निधन मतलब गरीब खेडूत है वो और अपने पिता पुत्र का दोनों का वार्तालाप सुन लेता है, क्योंकि वहाँ से उन दोनों को पक्षी को बर्ड्स को प्रेरणा मिलती है और वो अपने माँ के पास वापस चला आता है और अपने कुल की परंपरा का पालन करने में वापस तैयार हो जाता है। फ्रॉम दिस स्टोरी we will be inspired to the age-old tradition and culture in order to make our lives better. Thought animals are made the objects. Ultimately, the advice is given for a man. In the addition to this, you also have to learn the words from and the cases that have been used here. तो इस प्रस्तुत पाठ में मतलब कि जो परंपरा है जो अपने जीवन को उन्नत बनाती है, वो इस लेसन में से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपनी कुल की परंपरा का पालन करें। जैसे कि इसमें है कि एनिमल्स को मतलब कि निमित्त बनाकर जो इसमें उपदेश दिया गया है, तो इसमें हमको कारक विभक्ति जैसे वर्ड्स कारक पदों का विभक्ति का प्रयोग करना में आपको नेक्स्ट लेसन में से आपको कारक विभक्ति ऐसा समझाऊंगी। लेसन नंबर 2, एक चातक शिशु आसीत स एकदा तृष्या पीड़ित जनया समीपं व्रजति वदति च अम्ब तृषामा पीड्यते अहं जलं पातुमिच्छामि सम्प्रति मेघजलं न मिलति अतः तडागजलमेव पातुमिच्छामि। जननी वदति बाल वयं तु मेघजलम् एव पीबामः तडागजलं न पीबामः एष अस्माकं कुलस्य आचारः अतः त्वं तडागजलं पातुं शक्नोषि इति। इसमें है व्रजति वदति है, जो ती आता है वो अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। मिलती है, इच्छा में मी आता है तो
मी वह सीधा तो अन्य पुरुष एकवचन का प्रूफ है। तो चाटक शिशु है जो एक बार बहुत पानी से प्यासा हो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ मुझे बहुत बड़ी प्यास लगी है और मुझे मैं अभी तो मेघ जल नहीं मिलता है तो मैं तालाब का जो पानी पीने जाने की इच्छा है। तो माँ बोलती है कि हम है जो मेघ का ही जल यूज़ करते हैं, तालाब का पानी हम नहीं, क्योंकि ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। अब तो तू तड़क जल वहाँ नहीं जा सकता। तो उसका ट्रांसलेशन होता है कि ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊँ। चाटक शिशु मतलब कि चाटकस्य शिशु मतलब कि चाटक स्य, जहाँ पर स्य लगता है षष्ठी तत्पुरुष आता है, षष्ठी तत्पुरुष एक वचन। तो यंग वन ऑफ द चटका बट Trucia vitas पीड़िता एफ्रिटेड ट्रबल जनन्या समीपम नियर मदर व्रजति वदति च goes and say अम्ब ओ मदर Trucia पीड़यति Trucia मा पीड़यति ट्रस्ट डबल्स मी आई एम ट्रस्टिंग पातुम का अर्थ है रिंग इच्छा में आई वॉज संप्रति नाउ एट प्रेजेंट दिस इज द मेघ जलम मेघस्य जल, वहाँ पर भी जो मेघस्य जलम यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष आता है। वाटर ऑफ द क्लाउड न मिलती इज नॉट अवेलेबल तडाक जलम तडाकस्य जलम, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास आता है। वाटर ऑफ द लेक ऑफ या वन पर वयम टू बट मी एवं ओनली दिस इज एन इंट्रीबल न शक्नोसि यू कैन नॉट वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट कम पर से होता है। तो उसका एक ट्रांसलेशन होता है कि देयर वॉज ए यंग वन ऑफ चटाका वंस ही ब्रेकिंग एवरी डे बाय डस्ट गो टू मदर एंड से मदर आई एम ट्रस्टी आई वॉज टू ड्रिंक वाटर नाउ द वाटर ऑफ द क्लाउड इज नॉट अवेलेबल so I wish to drink the water of the lake only. Mother say, child, but me drink only the water of the cloud. We do not drink the water of the lake. This is the tradition of our family. So you cannot drink the water of the lake. अब सेकेंड पैराग्राफ है चाटक शिशु कथयति अम्ब महति मे तुषा अधुना आकाशे मेघां न पश्यामि कदा मेघ वर्ष्यति कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि अतः तृष्या पीडितो अहं तदा जलं पातुं गच्छामि। तो चाटक शिशु कहता है अपनी माँ से कि माँ मुझे बहुत बड़ी प्यास लगी है, अभी आकाश में कोई बादल नहीं दिखाई देता। तो बोलता है कब मेघ आएगा और कब मैं पानी पीऊँगा ये मैं खुद नहीं जानता। हाँ अब मैं तुषा से पीड़ित में तड़ाक जल पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। तो इसका ये मीनिंग से मैं समझा महती ग्रेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेमिनिन नाउन तुषा मतलब से बनता है। अधुना नाउ this is in the indiscoverable Megan clouds na pashyami do not see varsyati will shower words of the subject make शब्द बस शक्नोषि become strength न जाना में I don't know मतलब ना है चार लटलकार से बना प्रेजेंट टेंस है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहता है। अभी उसका ट्रांसलेशन होता है कि द यंग वन ऑफ द चटाका से मदर आई एम वेरी थर्स्टी नाउ आई डू नॉट सी द क्लाउड इन द स्काई आई डोंट नाउ व्हेन द क्लाउड विल shower and when I will be available to drink the water of the cloud. So bring up accident to buy the trust I am going to the trade drink the water. ये ट्रांसलेशन है। तो
ट्रांसलेशन आपको नोटबुक्स में जैसे फर्स्ट का जो फर्स्ट लेसन का जो लिखा था, उसके बाद सेकंड लेसन, तो न्यू पेज में आपको सेकंड लेसन लिखना है और उसका ट्रांसलेशन आपको मीनिंग कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ ट्रांसलेशन लिखना है। तो ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन, देयर वॉज द यंग बॉर्न ऑफ चटाका वंस ही ब्रिंग अपरेडेड बाई ट्रस्ट गोज टू मदर एंड से मदर आई एम नॉट ट्रस्ट, I wish to drink water. Now the water of the cloud is not available. So I wish to drink the water of the lake only. Mother say, child, but we drink only the water of the cloud. We do not drink the water of lake. This is the tradition of our family. So you cannot drink the water of the lake. The young one of the Chataka say, Mother, I am very thirsty. Now I do not see the clouds in the sky. I don't know when the cloud will shower and when I will be able to drink the water of the cloud. So bring affrighted by dust. I am going to the lake, drink water. जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः कुलाचारः सदैव रक्षितव्य एव अतः त्वं तडागजलं पातुं न हर्षि तुष्याशान् कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुं हर्षि त्वं। तो इसमें पुनरपि शब्द है, तो इसमें संधियुक्त पुनः जो र है उसका विसर्ग हो जाता है, र में र प्लस तो उसका उच्चारण आता है, तो पुनः प्लस अपि संधि होती है। चातक शिशु से अपने बच्चे से बोलती है कि हमारे कुल की परंपरा है और हमें अपने कुल की परंपरा की रक्षा करनी चाहिए और आप तड़क जल में पानी पीने के लिए नहीं जा सकते, अपने की प्रतीक्षा आपको करनी चाहिए। तो इसमें आपको मैं मीनिंग समझाती हूँ। इसमें संधि पुनः प्लस अपि, अगेन दिस इज इनक्लेबल बोध्यटी कन्वर्सेशन दो धातु पर से बनता है। तो कुलाचार्य कुलस्य आचार्य स्वस्तिक पुरुषम फैमिली ट्रेडिशन रक्षितव्य मस्ट बी प्रोवाइड, अस्मा भी कुलाचार रक्षितव्य मतलब कि इज इन द प्रोसी वर्ड से वॉइस है न हर्षि यू शुड नॉट, यू हैड द बेटर नॉट लटकार प्रेजेंट टेंस है, सेकेंड प्रेजेंट टेंस सिंगुलर है। तो तुष्या सहन कृत्वा ब्रिंगिंग विद द ट्रस्ट प्रतीक्षा करते यू शुड द वेट। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, तो मदर अगेन एडवाइस द यंग चटाका चाइल्ड दिस इज नॉट आवर फैमिली ट्रेडिशन, द फैमिली ट्रेडिशन हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, so you had better not drink the water of the lake. You should bear with the trust and wait for cloud to shower. सेकेंड पैराग्राफ है कि जननिया कथम अश्रुत्वा चाटक शिशु तडाग जलम पातु तडाम गंतु निगर्छन्ति मार्ग के परिशांत स यदा एकस्य कृषकस्य गृहसमीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयो वार्तालाप शृणतु। तो ये वो अपनी माँ की बात न सुनकर वो तड़ाक जल का पानी पीने के लिए वहाँ से चला जाता है, मतलब जाता है तो रास्ते में वो थक जाता है। जब वो थक जाता है तो एक खेडूत के घर पे कृषक एक मतलब खेडूत के घर पे पास जाता है, तो वहाँ पिता और पुत्र का वार्तालाप सुनता है। इधर ताता पुत्र, ताता च पुत्र यहाँ पर समास होता है कि ताता च पुत्र मतलब कि पिता और पुत्र इतने दंड मतलब कि दो व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तब इतने दंड समास आता है। तो इसका ये मीनिंग है, मैं आपको जननी यहाँ मदर्स कथम स्पीच और श्रुत्वा नॉट लिस्टनिंग, श्रुत्वा मतलब श्रुता पान ग्राउंड तड़ाक जलम तड़ागस्य जलम, तड़ाक जलम तड़ागस्य जहाँ स्य आता है ससी तत्पुरुषम वन ऑफ द लैंड वाटर लैंड, तड़ाक गंतुम टू गो टू द लैंड परिशांत वेरी टायर्ड, कृषक गृह समीपम नियर द फार्मर्स हाउस, टिस्टटी स्टैंड ताता पुत्र, मैंने आपको समझा कि ताता च पुत्र
चतुर्थ रिटर्नस वन इसमें ऑफ द सन एंड द फादर वार्तालाप कन्वर्सेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सुमति मतलब सुमति शब्द से बनता है। तो आपको मैं इसका ट्रांसलेशन समझाती हूँ। तो इसमें है कि नॉट द पेइंग हीड टू मर्डर एडवाइस द यंग चटाका एक्सिट टू गो टू द lake to drink the water of the lake. On the way, then bring her tired, he stands near the farmer house. He hears the conversation of the father and the son. थर्ड पैराग्राफ है कि कृषक मतलब कि जो खेडूत है कृषक वृद्ध मरणासनाच आसीत् तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथति तातः अधमार्गे मया धनश्रयोः प्राप्तः तस्य दर्शनात् आसन्दः जातः तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनश्रयोग्रहणाय अहं हस्तं प्रसारयामि किन्तु तदेव मया भवदीयः उपदेशः श्रुतः अन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं कुलाचारः न इति अतः अहं त्वं धनश्रयोः तत्रैव आत्मदे। यहाँ पर संधि है तत्र प्लस एव तत्रैव। तो ये है कि मैं आप एक जो खेडूत है जो दूध है और मरण की पथारी पर पड़ा हुआ है तो उसका पुत्र इसके पास खड़ा है वो अपने वो पुत्र खेडूत को बताता है कि पिताजी आज मुझको मतलब धन से भरा हुआ जो बैग मिला था तो उसके दर्शन से मुझे आनंद हुआ। तब के इससे देखकर मुझे लगा मेरी जो मेरा गरीब है वो गरीबाई दूर हो जाएगी। इसका विचार करके मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तदेव मुझे आपका उपदेश याद आया कि अन्य से धन से ग्रहण अस्माकं कुलाचारं मतलब अपना पूरी परंपरा ने तब मैंने धन वहाँ पर ही छोड़ दिया। अभी मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ। मरणासन मरणम आसन मतलब कि जो मरणम म जहाँ लास्ट में डॉट म आता है महलन तो द्वितीय पुरुष होता है। हु हैज़ द रिचेड डेड एडवाइस ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाउन कुशक मतलब कुशक मनसा आसित वॉस अस धातु लट लकार मतलब हस्तन जहाँ की हस्तन भूतकाल जो क्रियापद के आगे अ लगता है तो हस्तन भूतकाल का रूप हो जाता है। तो तस्य समीप स्थित हु वॉज द नियर हिम तस्मै कुशकाय कथति टेल्स द फार्मर नॉट वेन द रोड कट ह्यूज एंड द पर्सन टू whom the something to told is the डेटिव केस। अनदर एग्जाम्पल जैसे कि जनक पुत्राय कथा कथ्यति की अधः मतलब टुडे दिस इज द एन इनक्लाइबल मार्गे मया धन श्रूयत प्राप्त आई फाउंड ए बैग पेंटिंग मनी ऑन द रोड दर्शन बाय द साइड ऑफ डेथ ऑन द सीन इट जात हैपन टेन बाय इट मदीय दारिद्र्यं मया पॉवर्टी नष्ट भविष्य आई विल द डिस्क्राइब विल एंड तो भविष्य मतलब भूत धातु से मतलब लगा सेकंड फ्यूचर टेंस है। तो इट विचार्य टंस थिंकिंग धन श्रोता फॉर द टेकिंग द बैग एंड द मनी ग्रहणार्थ ग्रंथ एक्सप्रेस्ड ऑलमोस्ट द स्मेलर मीनिंग हस्तम प्रसारण स्प्रेड पुट फॉर माय हैंड प्रॉपर सूट ने पेर प्रकारांना काचकाला improve the past tense the first person singular verbs of the lesser subject aham tadeva tada plus eva then only immediately what you place our advice here reading smooth was the remind anya sadana grahanam upsetting others fall kulacharah is not the family tradition then tam dana srayatam that money back atmatayaj लिप त्वज मतलब फर्स्ट से लट लकारी इम्प्रेट फर्स्ट एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिंगल। अभी उसका ट्रांसलेशन होता है कि द फार्मर वॉज द ओल्ड एंड वॉज द अबाउट ही टू डाई हिज सन हु वॉज स्टैंडिंग नियर हिम टेल्स द फार्मर
Father, today money bag was found by me on the horse. As its sight digit me taking that my property will end by it. I reached out me and but immediately I remember your advice. It is not our family tradition to take the money of the other, so I leave the money back there only. जो मैंने आपको ये 3 पैराग्राफ समझाए हो उसका ट्रांसलेशन भी आपको नोटबुक्स में लिखना है. Mother again advised the young Chataka, child has not our family tradition. The family tradition has to be preserved, so you had better don't drink the water of the lake. You should beat the dust and wait for the clouds to the shower. Not paying heed to mother's advice, the young Chataka exit to go the lake to drink the water of the lake. On the way, when being tired, he stand near farmer's house. He heard two conversation of the father and the son. The farmer was old and was about to die. His son, who is standing near him, tell the farmer, father, today money bag was found by me on the way. It is delighted me thinking that my property will end by it. I reached out me hand, but immediately I remembered your advice. It is not our family tradition to lend the money of other, so I left money back there only. तो जो मैंने आपको जो ट्रांसलेशन दिया है वो आपको ये पार्ट जितना समझा इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. तो आपको ये जितना फर्स्ट पेज का जो मैंने समझा है उसको आपको नोटबुक्स में लिखना है. थैंक यू.